Assalamu alaikum. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University's course of Principles of Marketing. And we are here with our lecture number 2 today. I hope you have understood the first part, the first lecture, and you have also read about those topics which we are going to cover today. So, how was the first lecture? आपने सबसे पहले तो बताइए कि आपको क्या किताबें मिली कि नहीं मार्केट से, एंड डिड यू ट्राइड टू रीड एट लीस्ट, दैट इज गुड. और आज क्या टॉपिक पढ़ना हमने वो भी पता है. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. यू रिमेंबर व्हाट वी हैव कवर्ड लास्ट टाइम, एंड दैट विल बी अवर बेसिकली द काइंड ऑफ स्टाइल और मॉडल that whenever we start a lecture, we'll do a little bit the review part of the previous lecture, and then we'll go to that particular lecture which is supposed to be covered at that time. And before finishing the lecture, I'll also give you an indication, or at least tell you what kind of topics, what portion of the book we're going to cover for the next time. Fair enough, na? So let's start then. As I said, that we have to do for a few minutes only the summary of the previous lecture, and that was our lecture number 1 as of today. And today we'll be discussing our lecture number 2. So first, let's go and see what we have covered in our previous lecture, which was lecture number 1. Basically, what I did in that lecture was to introduce to you the subject of marketing, the basic marketing. And जैसे मैंने पहले कहा था कि I tried to scratch the surface. I've given you different aspects so that you should be able to understand what this marketing is. You remember this slide? Marketing involves having the right product available in the right place at the right time and making sure that the customer is aware of the product. So हमने इस तरह marketing को शुरू किया. And then I share with you a situation where we have a puzzle, different pieces of puzzle about marketing, that what is this marketing all about, and we try to solve this puzzle. और उसकी क्या पिक्चर बनी थी, जिसमें प्रोडक्ट एक पीस है. इसको क्या कहते हैं? दैट वाज मार्केटिंग मिक्स, राइट? 4 पीस, यस. और कुछ जैसे मैंने आपसे बताया था कि कुछ किताबों में 6 पीस भी हैं. वो 2 एक्स्ट्रा पीस कौन से हैं? You know that is the people and profit, right? But technically, in the marketing language, when we say there are 4 P's, they are the basic marketing mix, the basic component, ingredient of marketing. And what are those ingredients? First P is product, second is price, yes, and third is place. And you know that place here means channel of distribution, कि कहाँ पे उसकी availability होगी, कैसे you'll make sure कि वो आपका product services right place पे available हो. What about the last P? Yes, promotion. And we always call it as a way of communication. Communication among whom? The producer and the consumer. But who is important? Everything is important, but the most important component is the customer, the king, right? Why it is important? Why he or she is important?
because unless they are satisfied, your survival is in jeopardy. How can we make sure that our customers are satisfied? We should be sure if not only we have the customer, but we are retaining the customer and they are happy, they are satisfied from us. वो कैसे होगा? When you satisfy your customer better than your competitors are doing, then you can have the edge. Otherwise, this is the free word. See how much competition we have in the market for everything. You name it. Education में, clothing में, food stuff में, hotel business में, medicine में, airline में, traveling में, whatever you just count it. Any organization, it is for profit or non-profit organizations. Huge competition. तो उस competitive world में survive के लिए you must know that your customers, you are able to satisfy your customer better than your competitors are doing. Then you have the edge. ठीक है? So उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? Yes, the simple model of marketing, the marketing system, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज हैं, और कार्टल की डेफिनेशन याद है, where individuals, a group of people, they are trying to satisfy each other needs. उसमें 4 एक्टिविटीज बताई थी, starting from the producer side, communication through advertisement, through publicity, through any other means, and then providing product or services to the consumer or customer, and in return they are giving them the money if it is monetary exchange, and of course feedback too. So what about today? Remember, one topic was left from the last lecture, the roadmap. तो I've decided to start with the roadmap कि इस कोर्स के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कोशिश करने हैं कवर करने की. शुरू में वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर मार्केटिंग में वापस आएंगे, एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द बेसिक, जिसे कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. लास्ट लेक्चर के अंदर we have used so many times the need, the want, the demand. I'll try to give you a situation. I'll try to explain to you what does it mean and why it is important for marketer to identify the needs, unsatisfied needs, so that they should be able to run their show. So let's start with the roadmap. We have already covered this part, the lecture 1, introduction, an overview of marketing, which I gave you during last lecture, and today we also reviewed it. And then understanding the marketing and marketing process, I'll try to do it today, where I'll also cover the basic core concept of marketing. And then we'll go toward marketing functions and importance of customer relationship. Now, why I am focusing more and more toward customers? Because that is the key to success. अगर हमारी इस वक्त कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए तो बात की तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी. और रिमेंबर दिस टू कि दिस इज ए टेंटेटिव, आई एम गिविंग यू द रोड मैप. आई होप विल ऑफ कोर्स मोर देन 80-90% will follow the same, but during lectures we might spend more time at one point, less time at another point, or vice versa, depending on the situation, how we are moving. और आपकी तरफ से भी जैसे जैसे फीडबैक मिलती रहेगी उस तरह ही फिर मैं अपने लेक्चर्स को भी उस तरह ऑर्गेनाइज करता रहूंगा. Then we'll go toward historicals. History, why we
study history. That is important, because then at least we can understand how this thing was originated, कैसे शुरू हुई, क्या क्या इसमें चेंजेस आती गई और क्यों आई, so that we should also anticipate what is going to be in the next. Marketing challenges, especially in this century. क्या क्या challenges हैं एक marketing के point of view से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. Then I'll give you an overview under the topic of marketing management process. पूरा कंप्लीट प्रोसेस को हम हल्का सा टच करते हुए शुरू में चलेंगे. उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू में एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केटिंग सारा प्रोसेस है क्या. एंड देन लेटर आई विल गो इन डिटेल फॉर ईच पीसेस. एक दफा बेस ओवरव्यू दूंगा 2 लेक्चर्स में, 1-2 लेक्चर्स में, तो आगे आपके लिए वो चीज आसान होती जाएगी, क्योंकि वो चीजें बार बार सुनेंगे आप तो यू आर गोइंग टू रिटेन देम. Then we'll talk about strategic planning. There are different approaches. Portfolio analysis. आप देखते हो कि मुझे क्या फैसला करना है. Why do we plan? कितनी किस्म के प्लान्स होते हैं, कैसे मार्केटिंग में आपने प्लानिंग करनी होती है. We'll discuss those things. And then we'll start the marketing process. इसमें भी 1-2 लेक्चर शायद लेने पड़े हमें, ताकि आपको इन डेप्थ पे चीजें समझ आती जाए. यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टेकन दिस बेसिक कोर्स ऑफ मार्केटिंग विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग. तो आई विल फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स, बेसिक फिलॉसफीज, बेसिक थ्योरीज, बेसिक कंसेप्ट, ताकि वो जब क्लियर होगा तो फिर जितने मर्जी एडवांस कोर्सेज आप पढ़ते जाएंगे, थिंग्स विल बी प्रीटी इजी. ऑफ कोर्स एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And you know that there are 2 types of environments. We call them internal environment and external environment, or in other sense, micro environment and macro environment. So I have dedicated 2 lectures for environment, one for micro or internal, another for macro and or external. Or we have to see how those different forces of market environment जो है वो किस तरह आपको इफेक्ट करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग पे, आपकी प्लानिंग पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे. Then we'll do analysis of marketing opportunities, को कहते हैं, analyzing the marketing opportunity, and there is a system we call it marketing information system. Of course, it is same as management information system, but here we call them it marketing information system. वो क्या चीज है, उसमें क्या क्या ingredients हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. And then we'll go toward marketing research, which is also part of MIS. और फिर इसमें भी कोशिश करूंगा मैं आपके साथ शेयर करने की कि रिसर्च होती क्या है, कैसे करते हैं, और स्पेशली मार्केटिंग में ये जो आपने सुना होगा क्वेश्चनियर हो गया, सर्वे होते हैं, ये क्यों करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, सो दैट एवरीबॉडी शुड नो इट. देन विल कम टू द किंग, द कंज्यूमर. कंज्यूमर मार्केट से शुरू करेंगे. देन विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. इस पे हमारा होपफुली 3 एक लेक्चर इस पे भी चलेंगे, जिसमें हम सारा कंज्यूमर को पूरा डिटेल में मुख्तलिफ फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड देन बाइंग बिहेवियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट. व्हाई डू पीपल वांट न्यू प्रोडक्ट, उसमें क्या बिहेवियर होता है उसका, उसको भी ज्यादा डिस्कस कर लेंगे. Then first we studied the consumer market. Then we'll also discuss the business market, business to business. मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के साथ जो लोग बिजनेस करते हैं, उस मार्केट में भी क्या डिफरेंट होता है और उसका बिहेवियर कैसे होता है जब बाइंग की बात करते हैं. And after that we'll discuss very important topic of market segmentation. Market segmentation is very, very important topic. If we can understand that, that can help a lot. उसके बाद सेगमेंटेशन में 1-2 लेक्चर आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिस होते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं. We are going to discuss those things.
And then we'll come to our favorite topic, the developing the marketing mix. That will be the 4 P's. Now we'll focus on individual P and we'll go in detail. Like we'll start with the product. We'll start with the product planning, product attributes, product features, and how to develop a product, how to give it a name. Everything we'll discuss in those lectures. ये भी तकरीबन 3-4 लेक्चर इसमें भी इंशाल्लाह आएंगे. और फिर हम सर्विसेज को थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे. एंड देन विल गो टू प्राइसिंग. हाउ टू पुट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज. ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी, प्राइस एडजस्टमेंट और प्राइसिंग चेंज का क्या इफेक्ट होता है मार्केट के अंदर, हाउ वन शुड रिस्पॉन्ड दोज थिंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग टू. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो 3rd P जो है प्लेस, उसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिसको इन्वेंट्री वगैरह जिसे कहते हैं. एंड देन रिटेलिंग एंड होलसेलिंग और वेयर हाउसेज, जिसके होलसेलिंग जो होते हैं बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड द लास्ट P इज द प्रमोशन. लास्ट P, रिमेंबर दैट. प्रमोशन में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग हम डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स पब्लिक रिलेशन करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे एंड सेल प्रमोशन. दीज आर द अगेन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रमोशन. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड सेल प्रमोशंस. देन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, वो लोग जो आपके एक्चुअली मार्केट में जाके आपके लिए काम करते हैं, उसको सेल्स फोर्स कहते हैं. उस सेल्स फोर्स की मैनेजमेंट में क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत होती है, किन किन चीजों का ख्याल किया जाता है, वी आर गोइंग टू कवर दैट. Then how to integrate all those different activities, how to manage those things, we'll cover that. And then we'll touch about the today's marketing, the future marketing, that is the global marketing, because world is becoming a global village, right? And we'll also discuss some technological developments in this field. So due to globalization and technological changes, things are changed. So we should also discuss these things. So I'll try to give you some ideas why people are going to out of country to those different markets. क्यों मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं they are going out of their domestic markets. और फिर जो नई टेक्नोलॉजी जो IT है और बाकी चीजें हैं, इसकी वजह से इतनी स्पीड से चेंजेस आई हैं. Everything is changed. The way people do business, the way people market, to the way you reach your customers, the way customer is talking with you, communicating with you, totally changed. So we'll try to focus on those recent trends जो हैं marketing में, उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि you are studying for the future. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरफ हम जा रहे हैं. इसके अलावा सेम थिंग वेब बेस्ड मार्केटिंग पे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ चीजें. ई कॉमर्स का आपने लफ्ज बड़ा सुना होगा, बज़वर्ड. ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आर यूजिंग नाउ दिस वेब टेक्नोलॉजी फॉर डूइंग बिजनेस. B2C, B2B, इस तरह की आपने लफ्ज सुने होंगे, बज़वर्ड सुने होंगे. Business to consumer, consumer to consumer, business to business, something like that. And now using just laptop, you can do anything. You can purchase anything. So if we have to live in this changing environment, we should also learn these things. Otherwise, it will be history. Then social marketing. That is also important topic we'll be covering. फिर उसके अलावा एथिक्स पे और कंज्यूमर इश्यूज पे थोड़ा सा बात करेंगे. वैल्यूज, एथिक्स, जैसे मैंने शुरू में लास्ट लेक्चर में कहा था कि यू हैव ए बाउंड्री, उसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है. एंड वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट
that this ethical thing is subject to different things, right? One thing can be ethical for us, one activity can be ethical for us, it might not be ethical for other people. That is very important. Social ethics, the values, the norms, we have to remember किस कस्टमर की बात कर रहे हैं हम, किस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, what are their values, what are their norms. क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट आप देखेंगे जब हम when we will be talking about the consumer buying behavior, there's so many different factors which some might be ignoring, and they are playing very important role in their buying behavior. And it varies from culture to culture, from religion to religion, from a society to other society. Or being a smart marketer, we should understand those things, because that make a hell of difference on their buying behavior. तो जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो एथिक्स हैं, अगेन रिमेंबर वी हैव टू फोकस ऑन आवर पोटेंशियल कस्टमर्स, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर रिसोर्सेज ऑन अदर पीपल हु माइट नॉट बी योर कस्टमर. इसका यह मतलब नहीं है कि आपको चांस नहीं लेना चाहिए. we'll talk about those things, right? उसके बाद then during the last few lectures I'll try to review the whole topic again. जितने टॉपिक हमने कवर किए होंगे तो आखिरी जो आफ्टर 40th लेक्चर के बाद जो हमारे 2-3 लेक्चर रह जाते हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 लेक्चर के अंदर वो सारी चीजों को दोबारा आपके लिए रिव्यू कर दूं. एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर, to prepare you for the exams, and of course to make sure that we have learned something. और जो आखिरी एक लेक्चर होता है तो उसमें फिर मैं उस वक्त के हिसाब से मार्केटिंग के बारे में कवर भी दोबारा आपको दूंगा. आई होप कि इस तरीके से विल कवर ए लॉट अबाउट दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द बेसिक मार्केटिंग प्रिंसिपल्स. Or then at the end of this subject, मैं भी बड़ी अच्छी तरीके से प्राउडली कह सकूंगा, आप भी कॉन्फिडेंस होंगे कि वी हैव लर्न समथिंग. बट देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज अ कैच अटैच्ड विद इट. व्हाट इज दैट? द सेम थिंग, यू हैव टू डू योर पार्ट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू माई पार्ट in a very sincere and humble way. And I'll be expecting the same thing from you. Okay, you will do your part very seriously. What am I expecting from you? I'm expecting from you that you will listen this lecture very carefully. अपने लिए इशू नहीं बनाएंगे, इनको समझेंगे. आने से पहले उन टॉपिक्स को पढ़ के आएंगे बुक में से. लेक्चर सुनने के फौरन बाद जाके दोबारा उनको पढ़ेंगे. देन आई कैन बेट दैट यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग. आज के 10 साल बाद भी आपसे कोई मार्केटिंग का पूछेगा तो आपको हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन योर पार्ट, यू हैव डन योर पार्ट. फेयर इनफ? सो इट इज अ डील, राइट? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड यू विल डू योर जॉब. और फिर वो जो लर्निंग है हमारा प्रोसेस वो अच्छा होगा. आई एम नॉट हेयर जस्ट टू टीच यू, आई एम हेयर टू मेक यू लर्न, टू लेट यू लर्न समथिंग. पता है ना आपको, टीचिंग में और लर्निंग में फर्क है. खाली सुन लेना, रटा लगा लेना, दैट इज नॉट अ बिग थिंग. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर. इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू लर्न थिंग्स. और लर्निंग इज, of course, it is not piece of cake, but same time it is not impossible. So let's try with clear mind, नेक नीति के साथ. तो इंशाल्लाह मैं जब 45th लेक्चर का लेक्चर दे रहा हूंगा तो आपको मुझसे ज्यादा मार्केटिंग आनी चाहिए. Let's move now. Actors and forces in the modern marketing system. ये सारा कुछ कौन कौन इसमें सारे इन्वॉल्व हैं,
एक छोटा सा मॉडल आपके साथ शेयर करता हूं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी है. You have a particular environment where you're working. Of course, in that environment, you can have the micro and macro both factors, internal environment and external environment. आपकी कंपनी है, आप you as a marketer are there, then you also have the competitors. आपकी तरह के और बहुत सारे भी वो लोग काम कर रहे होंगे. You are there, you have competitors also in the same market with you. Then you have suppliers. वही suppliers आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें, आपके कंपेटिटर्स को भी दे रहे हैं. तो who can make the difference then? If the supplier is the same, if the raw material you are getting the same, so who is going to make the difference? The people, the company, the worker you have, the marketing process you have. The more you know about your customer, the better off you will be. फिर when you are doing the placement और channel of distribution जहाँ होते हैं, तो दरमियान में मिडल मैन बहुत सारे आ जाते हैं, जिनके जरिए आप कोशिश करते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपसे कंज्यूमर तक पहुंचे. They are also affecting this whole process, because the same middleman may be your middleman and also of your competitors. ये जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा. एंड ऑफ कोर्स एंड यूजर, एक सिंपल सा मॉडल भी आपके साथ फिर वही शेयर कर रहा हूं कि देखिए किस एनवायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं. what are the main stakeholders which are playing their roles one way or other. You're not working isolated कि आप सोचें कि अच्छा आज नहीं करता कल कर लूंगा, ऐसे नहीं करते ऐसे कर लूंगा. Why? Whatever step you are taking, remember that it is going to affect you, affect your business, affect your customers, affect your future. I'm talking about as a marketer, right? इसको बार बार में लाऊंगा ताकि we should not lose the track. We should remember what are we talking? Marketing. ये भी स्लाइड आपको याद होगी. Simple questions, hard answers. Who are our customers? What important and unique benefit do we provide them? In form of product, in form of services. में क्या चीज ऐसी है जो दूसरे नहीं कर सकते? क्या वो यूनिकनेस सस्टेनेबल है? द थर्ड पार्ट, आर दीज बेनिफिट सस्टेनेबल? कि जल्दी खत्म हो जाएंगे तो फिर तो फायदा क्या हुआ? They say, always you should be at your toes. Keep your eyes and ear open in market and you will get a lot of opportunities. मार्केटिंग में हमें पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ स्लोगन्स होते हैं, यूज करते हैं लोग. Keep your eyes and ear open. You'll always get a lot of opportunities. Always be at your toes. अलर्ट रहिए. कोई मूव होती है, आपको इमीडिएटली अपने आप को एडजस्ट करना है. तो ये चीजें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मार्केटर or even any business person or anything you are doing. You are in a competitive world where there are a lot of pressures on you. तो क्या था मार्केटिंग याद है? Process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging product and values with others. सीधा मैंने आपसे कहा था कि हम लेक्चर नंबर 2 में इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. नीड, वांट्स, ये क्या चीजें हैं, क्या तल्लक है इनका. तो आज हम इसी को समझेंगे इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में. तो कॉटलर ने क्या कहा था याद है कि मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स दे ट्राई टू obtain or exchange with each other. Why? Because they are trying to satisfy each other needs. तो वो सारी
बेसिक मार्केटिंग है। उसी चीज को समझने के लिए विल ट्राई टू कवर द कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टुडे। ये नीड क्या है, ये वांट क्या है, ये डिमांड क्या है, कैसे ये चीजें चेंज होती हैं, एंड व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, व्हाई मार्केटिंग शुड बी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग, बिकॉज हिज और हर जॉब इज to help or provide, satisfy the unsatisfied needs of his or her customers। तो ये चीज समझने के लिए देखते हैं कि ये कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ये मॉडल आपकी बुक के अंदर होगा, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कोर कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। नाउ लुक एट दिस मॉडल, यू कैन सी दैट इट स्टार्ट विद द नीड, वांट्स, डिमांड, and then it's moved to product, then it's go to exchange, transition, और फिर ultimately market, and then इस तरह सर्कल कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा गौर से सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये भी एक बेसिक चीज है, अगर तो ये समझ आ गई तो देन यू विल बी कंफर्टेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर कॉन्सेप्ट्स। बाय द वे, व्हाट इज नीड? नीड क्या चीज है और इसका क्या इफेक्ट क्या आपकी मार्केटिंग पे? व्हाई मार्केटर मैनेजर शुड बी कंसर्न अबाउट द नीड? एज आई सेड अर्लियर, he or she should be concerned about the need of the customer because his job is to satisfy his customers or her customers' unsatisfied needs। तो नीड क्या चीज हुई, किसको कहते हैं नीड? When you are deprived of something, that is your need, isn't it like that? पढ़ा होगा आपने फिजिकल नीड, बेसिक नीड, प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड, कुछ याद है ये चीजें? अगर इस चीज को समझ जाए तो बहुत सारी चीजें आपको और भी समझ आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं अगेन नीड से। व्हाट इज नीड? नीड इज व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। लाइक अभी अगर आपको प्यास लगी है तो पानी की नीड है ना, यू आर फीलिंग थर्स्टी। जितनी जितनी बढ़ती जाएगी ये, उतनी ही ज्यादा उसकी मांग, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी आप पे ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा, स्ट्रेस बढ़ती जाएगी कि ये फुलफिल होनी चाहिए। नाउ दिस नीड इज टर्निंग इनटू वांट्स। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको प्यास लगी है तो आप पानी की तलाश करेंगे, पानी पीना चाहेंगे। हाउ कम ए नीड इज shifted toward or moving to, and why it is, or when need is shifted toward wants, और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको भूख लगी है तो क्या खाना पसंद करेंगे? यू कैन से ओके, आई वुड लाइक टू हैव ए चिकन। Another person can say, मुझे तो दाल चावल चाहिए। Another person might be asking, मुझे तो फ्रेंच फ्राइज चाहिए। And just imagine, ये तो मैं आपसे, लेट्स सी स्टूडेंट बैठे हुए सारे, आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को भूख लगी हो, पाकिस्तानी को, तो वो क्या मांगेगा? पाकिस्तान से भी हटाएं, हम पंजाब की बात करते हैं, सरहद की बात करते हैं, बलोचिस्तान की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, अपने सूबे हमारे, वहां के रहने वाले लोग हैं, हर एक की वांट डिफरेंट होगी। कोई चपाती पसंद करेगा, कोई चावल पसंद करेगा, किसी को भुजिया अच्छी लगती है, कोई कहेगा जी नहीं मुझे ड्राई फ्रूट, ड्राई चीज चाहिए। एंड इफ यू गो अबाउट टॉक अबाउट अदर पीपल, अदर कंट्रीज, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे माइट हैव डिफरेंट वांट्स। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? लुक, द नीड इज द सेम। सबको भूख लगी है, भूख के बदले में, भूख के लिए क्या करेंगे? तो कोई तो रोटी खाएगा, कोई चावल खाना चाहेगा, कुछ मुर्गी खाना चाहेगा, कोई दाल खाना चाहेगा, कोई मच्छी खाएगा, कोई सैंडविच लेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? योर कल्चर इज शेपिंग अप ऑफ योर नीड इनटू वांट्स। इजंट इट लाइक दैट? बात समझ आई कि नहीं? कि किस कल्चर में आप रहते हैं, किस सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, वहां की जो रहन सहन है, वहां के जो तौर तरीके हैं, उन्होंने आपकी नीड को एक शक्ल दी वांट्स की। फॉर सेम नीड
you can have different wants. नहीं समझे? So you got the idea now that for same need you can have different wants. और कैसे बनते हैं? Your culture is shaping up your wants. अब डिमांड क्या है? बड़ी आपस में ओवरलैप करती हैं चीजें, बट स्टिल इट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, द माइंड सेट ऑफ द कस्टमर, सो दैट एज ए मार्केटर यू शुड मेक बेस्ट डिसीजंस. दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अभी आपसे पूछा कि यार क्या खाना पसंद करोगे, भूख लगी हो तो somebody can say I want pizza, I would like to have a chicken, I would like to have a trout fish हो जाए, and so on. Of course that is want. इसी तरह मैं अपनी क्लास को जब पढ़ाता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, अच्छा बच्चों बताओ कौन सी गाड़ी चलाने को दिल करता है? Some can say, फिर मुझे जैगुआर चलानी है, कोई कहता है मुझे रोल्स रॉयस चलानी है, कोई कहता है मुझे फलां चीज चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर, उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर, those things are status symbol. People love to have those things. But what about the ground reality? Can you afford that? So, अगर तो अफोर्ड नहीं कह सकते तो फिर तो वांट ही रहेगी. अगर अफोर्ड कर लिया तो इट बिकम द डिमांड. एक जरूरत थी आपकी, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, योर कल्चर हैज शेप्ड अप इट इनटू वांट्स. वो वांट्स which are backed up with your buying power will become the demand. आसान है ना? See the difference between need, wants and demand. Needs deprived of something, और उस need की शक्ल बनती है wants की. For the same need you can have different wants depending on your culture, your values. और वही want डिमांड तब बनती है व्हेन इट इज बैक्ड अप विद द बाइंग पावर. दिल तो मेरा भी करता है कि मेरे पास जैगुआर हो, बट आई कैन अफोर्ड सुजुकी या टोयोटा, दैट इज फाइन. सो माई डिमांड विल बी टोयोटा और सुजुकी, नॉट द जैगुआर. यहां तक समझ आ गया? नाउ अगेन लुक एट दिस मॉडल. नीड, वांट, डिमांड के बाद नाउ इट इज गोइंग टूवर्ड प्रोडक्ट. तो ये एक्चुअली फिर एक प्रोडक्ट और सर्विस की शक्ल में आ गई. ठीक है ना? तो इसी चीज को समझाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दैट मॉडल फॉर यू. आई हैव पिक दैट मॉडल फ्रॉम योर टेक्स्ट सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है? सो आगे चलते हैं. इस नीड, वांट और डिमांड को थोड़ा सा मैं टेक्स्ट में आपको बता दूं. सो नीड्स ए स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइव्ड, इट्स योर नीड. वांट्स, दे आर द नीड्स शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज. मेरे लिए फर्क है, आपके लिए फर्क है, दूसरे के लिए फर्क हो सकता है. एंड डिमांड, दे आर द वांट्स बैक्ड अप बाय द परचेजिंग पावर. क्लियर? आगे क्या है? प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज. नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्ट? व्हाट आर सर्विसेज? एनीथिंग which will satisfy that particular need. शुरू कहां से किया था? नीड से किया था ना, when you are felt deprived. उस डिप्राइवनेस को जो आपको सेटिस्फाई कर दे, वो चीज प्रोडक्ट या सर्विस की शक्ल अख्तियार कर लेती है. सो अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर रिटेंशन, एक्विजिशंस, यूज फॉर द कंजप्शन, and that may satisfy a need or want of a particular customer. And that includes physical goods, services, people, places, organizations, activities, ideas, and so on. मुझे कोई मशवरा दे कि मैं कहां जाऊं, मुझे कोई सजेस्ट करे कि मैं कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ लूं, कौन सा फील्ड पिक करूं,
यू आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. Somebody will give you idea कि ये path adopt करो, you will be successful. See, that is included in the category of product or services. उसके बाद क्या है? यही जो प्रोडक्ट और सर्विस की फिर आगे वैल्यूज और सेटिस्फैक्शन लेवल बनता है. नाउ व्हाट इज वैल्यू हियर? अगेन वन थिंग कैन बी वैल्यूएबल फॉर यू एंड इट माइट नॉट बी वैल्यूएबल फॉर अदर पर्सन. जिसको सही नजर नहीं आता उसके लिए चश्मे की बड़ी वैल्यू है. जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए वो जो हियरिंग एड है उसकी बड़ी वैल्यू है. बट पीपल विद द नॉर्मल आई साइट, नॉर्मल हियरिंग, दे डोंट हैव दैट मच वैल्यू अबाउट दोस थिंग्स, दोस प्रोडक्ट्स. और फिर वैल्यू इस तरह भी कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच यू आर पेइंग एंड इन रिटर्न व्हाट यू आर गेटिंग. द मोर बेनिफिट यू आर गेटिंग देन द कॉस्ट यू आर पेइंग, द मोर यू आर सक्सेसफुल, द मोर यू हैव द वैल्यू, द मोर सेटिस्फाई यू आर. इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे किसी स्टेज पे, जब हम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे कि क्वालिटीज क्या होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी किसको कहते हैं, उसकी क्या कैटेगरीज है, क्या पैरामीटर्स हैं, टीक्यूएम का क्या कांसेप्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का. सो इस स्टेज पे मैं अभी उन थोड़े से एडवांस टॉपिक्स को कवर टच नहीं करूंगा, सो दैट थिंग्स शुड रिमेन इन द सेम प्रोस्पेक्ट और इजीली आपके लिए समझ आना आसान रहे. नाउ देयर विल बी अनदर स्टेज जो नीड से शुरू हुई थी, उसने प्रोडक्ट की शेप, प्रोडक्ट की शक्ल अख्तियार कर ली वांट्स डिमांड होते हुए, फिर उसकी वैल्यू बनी, एंड नाउ इट इज द एक्सचेंज. व्हाट इज एक्सचेंज? और ट्रांजैक्शन क्या होगी, किस शक्ल में ये एक्सचेंज होगी, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट which we'll be covering. What is exchange? Exchange is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. We are doing some exchanges. Exchange to take place, there are certain prerequisites. किसी भी exchange के होने के लिए कुछ basic requirements होती हैं. वो क्या है? There are 5 conditions. What are those 5 conditions for exchange to take place? Number 1, at least there are 2 parties required. कोई 2 लोग होंगे, 2 पार्टीज होंगी तो फिर एक्सचेंज होगी ना. मैं अकेला दीवार के साथ क्या एक्सचेंज करूंगा? At least 2 parties are involved. उसके बाद क्या है? Both must have something valuable for each other. Of course, then exchange can take place. तीसरी कंडीशन क्या होगी? Both are willing to exchange. किसी को आप ऐसे कान पे रख के कहें जी के सर पे रख के ये चीज दे दो, तो वो एक्सचेंज नहीं हुई. Exchange to take place, there are certain conditions, but prerequisites. They are at least 2 parties are involved. Each has something valuable for each other. Both are willing to exchange, and both are free to accept or reject the offer. No compulsion. और आखिरी बार, both can communicate. एक दूसरे को समझेंगे तो फिर डील कर सकेंगे ना. एक दूसरे की कम्युनिकेशन को समझ के फिर एक्सचेंज हो सकेगा. So, for exchange to take place, there are 5 prerequisites. Just repeat with me. At least 2 parties are involved. Each has something valuable for each other. Both are willing to exchange. Both can accept or reject the offer. And they can also communicate. Then we can think कि yes, exchange has taken place. उसके बाद क्या होगा? ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं किस शक्ल में, कैसे होगी? Remember during last lecture I talked about monetary exchange, barter exchange. 2 किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं, या तो बार्टर होती है या मॉनेटरी होती है. मॉनेटरी एज द नेम इज क्लियर कि at least one party is paying in the form of money. You are here listening
this lecture. You're getting these services, there's those things which I'm delivering to you. In return, you have paid to virtual university your registration fee. So that is a monetary exchange. हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ गांव में भी होता है कि वहां जब फसल कटती है तो जितने भी लोग जिनसे आपने सर्विसेज ली होती हैं, बाल कटवाए होते हैं, कपड़े सिलवाए होते हैं, बाकी उनको आप वो अनाज, वो गंदम, वो मकई देते हैं. दैट इज बार्टर एक्सचेंज. When you do transaction in form of some good or services, so that is a barter exchange. आजकल अमूमन मॉनिटरी एक्सचेंज होती है, so transaction may be in monetary or barter. Clear? What next? ये सारा कुछ कहां होता है, किसके साथ होता है? Of course, market. So what is market? क्या है मार्केट बाय द वे? यस, ये जो आपके इर्द गिर्द मार्केट. बट फॉर मार्केटिंग शूटिंग दैट इज नॉट इनफ. इफ आई से आई डोंट हैव एनी मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, व्हाट डज इट मीन? एनी प्रोडक्ट. इफ आई आस्क क्वेश्चन टू यू, आई डोंट हैव एनी मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? यस, पोटेंशियल कस्टमर्स, द सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इज ऑल्सो योर मार्केट. तो मार्केट कैन बी नाउन, मार्केट कैन बी प्लेस वेयर दिस ऑल दीज एक्सचेंजेस टेक प्लेस, और मार्केट कैन बी द सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर. ये यहां भी यही लिखा है, ए सेट ऑफ एक्चुअल और एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज मार्केट, या वो जगह जहां पे आप सारी ये एक्सचेंज वगैरह करते हैं, या इसको एक नाउन के तौर पर भी हम यूज करते हैं. सो मार्केटिंग सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द मार्केट्स बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज प्रोसेस. डिड यू गॉट द कंसेप्ट नाउ क्लियर? दोबारा आपसे वही चीज पूछता हूं कि जो कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक साइकिल देखा आपने, साइक्लिक फॉर्म में था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीड और मार्केट पे आपके एंड हुआ. दैट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थिंग. इफ वी आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, आई कैन बेट कि आगे इसके ऊपर जो हम बिल्डिंग रखेंगे वो ज्यादा और आसान होती जाएगी. स्टार्टिंग विद द नीड अगेन, जस्ट क्विकली रिव्यू विद मी. क्या नीड होती है, वांट कब बनती है, डिमांड कैसे बनती है, और वो फिर एक प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार करती है, राइट? प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस. वांट्स विच आर बैक्ड अप विद द बाइंग पावर आर योर डिमांड. दिल तो करता है कि अच्छी गाड़ी हो, नहीं अफोर्ड कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आपकी डिमांड होगी. ऑफकोर्स दैट माइट बी योर वांट. So wants which are backed up with the buying power are your demand, और फिर वो प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, प्रोडक्ट और सर्विस. एंड व्हाट इज ए प्रोडक्ट और सर्विस? एनीथिंग विच विल सेटिस्फाई योर नीड, द अनसेटिस्फाइड नीड. और उसके बाद उसकी एक्सचेंज होती है, और एक्सचेंज में भी आपको बताया कि देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स, कि एटलीस्ट टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, ईच हैज समथिंग वैल्यूएबल, बोथ आर विलिंग टू एक्सचेंज, both have the right to accept or reject, and both can communicate. और किस शक्ल में होती है उसको बार्टर या मॉनिटरी एक्सचेंज भी कह सकते हैं. एंड देन द मार्केट, द पोटेंशियल बायर, द प्लेस आर द नाउन. So see how this whole process is a cyclic form. The author has placed in the text so that it should be easy for us to understand this concept. Clear? So let's move. So I hope you are clear with this concept, right? Goals of the marketing system. Whatever we are doing, what are the goals? Stimulate maximum consumption of whatever we are producing. Product, service. PU का क्या goal होगा? Maximum student enrollment.
Maximize consumer satisfaction. Yes, the more you are satisfied, the more they have chances they will get more customers. And of course, they will retain you too. Maximize variety and choices. Remember the Peter Drucker said, the innovation and marketing, they are the core, a key to success. Variety, हर कोई variety चाहता है. See, last lecture I gave when I was sitting. Today I tried to come and stand and talk with you. Next time I might be doing something different. So that will create a creativity, something new for you, and keep you interested. And quality, very important factor. किस किस्म की एक्टिविटीज में मार्केटिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं? यू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग. सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि दे हैव टू डू देयर स्वॉट एनालिसिस. दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर मिशन, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव. उसके बाद दे विल सेट देयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Then they will gather information to do the SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunity, and threats. They have to develop a marketing strategy based on the information they have already gathered in a situation where they are working. And then they will implement that strategy, whatever they have adopted. फिर उसकी they will measure the performances. क्या रिजल्ट ठीक आ रहे हैं? If the results they have anticipated they are getting, at least those results are better than them, that is fine. If not, then what? Of course, then you will go for re-evaluation and you might change if needed. And that is how whole process of business or marketing activities, they take place there and they are started. Enough, na? So, but remember, before we go, we have to do two different activities. What are those? First of all, we have to review what we have discussed today, summarize it, right? And then we have to discuss what we are going to discuss for the next lecture. So let's do the summary part of today's lecture. तो आज क्या पढ़ा हमने? Yes, सबसे पहले we discuss the road map. कि what topics we are planning to cover during this subject. These are our lecture of next 44 or 43 more lectures. उसके बाद we again came back to basic marketing concept. वही right time, right place, right thing, right product को discuss किया. And the last part was, and of course the very important part was, the core marketing concept. We try to understand the basic need philosophy, how those needs, they are completing the whole marketing process. कैसे नीड से वांट से डिमांड बनती है और फिर प्रोडक्ट की शक्ल अख्तियार करती है और देन ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंज टेक प्लेस होती है. वैल्यूज की हमने बात की और फिर मार्केट की बात भी की. तो आई होप इट वाज नॉट डिफिकल्ट, राइट? एग्जैक्टली दिस वाज द मॉडल विच वी कवर्ड ड्यूरिंग अवर दिस लेक्चर. आपके टेक्स्ट के अंदर इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है. इसको उसने कई जगहों पर मैंने देखा है कि वो नीड, वांट, डिमांड को 3 डिफरेंट ब्लॉक्स में लाते हैं, बट दीज आर द सेम थिंग्स. द बेसिक, you should understand the basic concept, basic philosophies. Don't worry about the shapes. Don't worry about the आगे पीछे क्या लिखा है, because those are all different things to just you, to let you understand things or get things clear. Next time क्या होगा? Next time we'll try to cover or discuss basic marketing functions. And of course, we're still at the customer part. Your client, your boss, your king. How can we make, उसको CRM भी बोलते हैं,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और फिर आस्ता आस्ता ऐसे हम बिल्ड करते हुए मार्केटिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। And you're following all those things which we are discussing. But if still you have any problem, do write us. You know how to reach Virtual University? Mail them and somebody will respond you to. एक चीज याद रखिए, जो कंसेप्ट पढ़े, जो टॉपिक पढ़े, उसको क्लियर करके आगे चलें। If you put those things for the future, then you'll be lost. तो क्या हमारा एग्रीमेंट आज हुआ था कि आज जो लेक्चर आप सुनेंगे, यू विल गो बैक होम, रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट, फिर देखिए, फिर पढ़िए, जब तक क्लियर नहीं होता इसको कोशिश करें। एंड देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, जस्ट रीड इट। कई चीजें आपको ऊपर से गुजर जाएंगी सर से, कई चीज समझ नहीं आएंगी, डोंट वरी। इवन 10% भी आप रीडिंग में कुछ समझ लिया तो आपके लिए बड़ी फायदे की बात। अगेन विद द सेम होप that will follow our agreement. Have a good day. Enjoy your life, but do study. Do work hard. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के साथ। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हाउ आर द फर्स्ट